Today we will be doing unit number 26, comprehension, from your grammar book. Children, this is a very interesting kind of a unit because इसमें हम ये जानेंगे कि exactly हमें answers कैसे लिखने होते हैं. Okay, किसी भी comprehension को यानी कि किसी भी written material को देखकर, comprehension means written material को देखकर आप इसके बारे में answer कैसे करोगे. Okay, I want all of you to have all your attention in here right now. ओके तो यहाँ पे हमें एक कॉन्वर्सेशन दी हुई है दो लोगों के बीच में, दैट इज़ संगम एंड आरती. यहाँ पे संगम और आरती कुछ बात कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट आर दे टॉकिंग. वी विल फर्स्ट रीड इट एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. ऑलराइट. ओके तो संगम सेज, आई वेंट टू जोधपुर लास्ट वीक. इट इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी इन राजस्थान. ओके so Sangam here is telling Aarti that I went to Jodhpur last week and it was a beautiful city. Aarti, I've never been to Jodhpur. Please tell me more about the place. Now Aarti wants to know more about the place. Okay. Sangam, Jodhpur is also known as Blue City. It is famous for its forts and museums. The places in Jodhpur are carved from hard sandstone. Okay. The museum displays ancient weapons, paintings, and thrones of the kings. Foreigners visit Jodhpur to relish its beauty and special food. People of Jodhpur are known for their hospitality. I'll send you some photos that I've clicked. Then Aarti says, sure, I'll love to see them. Which places you like the most? Now see children, हम कॉन्वर्सेशन कैसे देखते हैं ये भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है नाव से. सबसे पहले संगम ने आरती को बताया कि वो जोधपुर गया था. तो जोधपुर के बारे में आरती को नहीं पता था, तो शी आस्क्ड मोर अबाउट इट. ठीक है, उसको और जानना था, तो उसने बोला प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट द प्लेस. फिर संगम ने जो भी बताया उसके बारे में उसने कहा कि मैं पिक्चर्स शेयर करूँगा. तो उसने कहा येस आई विल लव टू सी देम. दैट इज़ हाउ यू राइट अ कॉन्वर्सेशन. Then Sangam says, I loved everything I saw there. Mehrangarh Fort, Umaid Bhavan Palace, Mandor Gardens and Jaswant Thada are mesmerizing places. Jodhpur is also famous for International Desert Kite Festival. Okay? Alright. Aarti then says, have you brought some souvenirs from Jodhpur? Souvenir का क्या मतलब होता है children? Souvenir का मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं. सोवेनियर का मतलब बेसिकली निशानी होता है. ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे एफिल टावर लोग जाते हैं तो वहाँ से छोटे छोटे एफिल टावर्स लेके आते हैं की चेन्स में, नहीं तो डेकोरेटिव्स में. दोज आर कॉल्ड सोवेनियर्स. ऑलराइट. संगम, आई ब्रॉट tie-dye fabrics, wooden furniture, arty crafts, handmade carpets, lakh bangles, leather items and embroidered footwear from Jodhpur. I've bought some gifts for you too. Here you are. Here you are का मतलब ले लो. Okay. Here you are मतलब this is for you. Aarti, wow, how beautiful lakh bangles these are. Alright. So that's how you write a conversation between two people. Okay, let's see the next page now. Now children, यहाँ पे कुछ questions दिए हुए हैं जो कि आपको आंसर करने हैं by reading the last comprehension जो भी हमने पढ़ा. Who are talking? संगम एंड आरती आर टॉकिंग. ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पे देखो संगम और आरती यहाँ पे बात कर रहे हैं. सी संगम एंड आरती आर टॉकिंग. नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लेस डिड संगम विजिट? नाउ सी विच प्लेस डिड संगम विजिट. देखो यहाँ पे लिखा है ना संगम का. देखो संगम का आई वेंट टू जोधपुर लास्ट वीक, इसका मतलब उसने जोधपुर विजिट किया था. ओके, so that's how you find the answers. Question number 3, what does the museum display? अब देखो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में ट्राई टू फाइंड आउट कि म्यूजियम के बारे में कहाँ बात हुई है. देखो द म्यूजियम डिस्प्लेज एंड एंशिएंट वेपन्स, पेंटिंग्स एंड थ्रोन्स ऑफ द किंग्स. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर डिस्प्लेड इन द म्यूजियम. ऑलराइट, that's what you will write. So children, that's how you basically find answers. चिल्ड्रन, जितना मैंने बताया है उतना तो ठीक है, उसके बाकी जो बच्चे हैं यू विल डू एज होमवर्क. ऑलराइट,
though this is not something which is going to come in the exam, but आपको इसी तरीके से अनसीन पैसेज आ सकता है, यानी कि आपने जो पैसेज कभी पहले देखा ना हो, मैं आपको वो दूंगी एंड आपको वहीं के वहीं उसमें से पढ़ के आंसर्स फाइंड आउट करके मुझे बताना होगा एग्ज़ाम में. ऑलराइट, सो ये एग्ज़ाम में आ सकता है बट नॉट द सेम कॉम्प्रिहेंशन. इट विल बी सम डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन. ओके, नाउ से यहाँ पे एक और कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है चिल्ड्रन. अ नाइटिंगेल इन अ केज. सेम चीज़ करनी है, ये पढ़ना है, इसको करना है. ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ना है यहाँ पे एंड ये सारे आंसर्स इसमें से फाइंड आउट करने हैं. ये आप लोग खुद करेंगे. एंड सेम गोज़ फॉर दिस पोएम. यहाँ पे आपको पोएम पढ़ना है और आंसर निकालना है. चिल्ड्रन, हमने अपना रीडर बुक में बहुत सारा पोएम्स पढ़ा है, बहुत सारा आंसर्स किया है. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू ऑल दीज 3 थिंग्स ऑन योर ओन फॉर द होमवर्क. I will definitely help you. If you have any questions, rest you will have to do on your own. And I want 100% attendance for the homework. Thank you so much, children.